کے ساتھ کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کے بڑے دعوے سے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء کا کہنا تھا کہ پنجاب میں عدم اعتماد پرویز الہی کی یقین دہانی پر لائے. پرویز الہی نے ہماری وزارت اعلیٰ کی آفر قبول کی. پرویز الہی نے سعد رفیق کو مبارکباد دی اور دعائے خیر بھی کرائی. عدم اعتماد جمع کرانے میں تاخیر پر فون کر کے پوچھا لیٹ کیوں ہو گئے. پہلی بار چودھری صاحبان نے ایسا رویہ اختیار کیا. ایسا کرنے کے بعد پرویز الہی پی ٹی آئی کے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. جو کیو لیگ ہے ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، آخری ملاقات ہوئی ان سے، باقاعدہ ہم نے ان کی آفر کو تسلیم کیا. جوہری صاحب نے باقاعدہ ایکسپٹ کیا. جوہری صاحب نے باقاعدہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا ڈیرا شکریہ ادا کیا. دعائیں خیر ہوئی اور اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ پتہ چلتے ہی یہ اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس لیے آپ صبح ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے بزدار کے خلاف جمع کروا دیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، جب آپ سے بات ہو گئی ہے تو ہم کروا دیتے ہیں. تو صبح 9:30 بجے جو ہے وہ تحریک جمع ہونی تھی. وہاں پہ جن دوستوں کے ذمہ لگایا گیا وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے. 9:31 پہ چودھری صاحب کا فون کہ جی وہ جمع نہیں ہوئی ابھی تک، اور اس کے بعد وہ 9:45 بجے جو ہے وہ جمع ہوئی. اور اس کے بعد پتا چلا کہ چودھری صاحب نے جو ہے جا کے حکومت سے بات کی ہے. ویسے چودھری صاحبان کی سیاست میں یہ پہلا واقعہ ہے جو میرا خیال ہے کہ چودھری مونس الہی صاحب کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، ورنہ چودھریوں نے کبھی ایسے فیصلے جو ہے وہ کیے نہیں ہیں اس سے پہلے. اس پر مزید تجزیہ حاصل کریں گے سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا اور آسمہ شرازی. اس کے ساتھ ساتھ بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی، سب سے پہلے آسمہ آپ کی جانب آئیں گے کہ اب شکوے شکایت سامنے آ رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے کہا کہ ہم سے حامی بھری گئی تھی. پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہیں. چودھری برادران نے انہیں مبارکباد بھی دی تھی، لیکن آخر میں ہوا یہ کہ وہ پی ٹی آئی کے پاس واپس چلے گئے. جی بالکل، یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے جو ہے ان کو آفر کر دی گئی تھی، اور اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جو تھے وہ دونوں بہت، خاص کر کے زرداری صاحب نے کوشش بھی بہت کی. اور اس موقع کے اوپر کہ جب ظاہر ہے کہ فیصلہ ہو چکا تھا، ادھر سے جب آفر آ گئی اور اس کے بعد پھر ایٹ 11th آور جو ہے وہ بنی والا پہ ان کے ساتھ جو اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی، وہاں پہ پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا. تو یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے، اسلام آباد میں بہت سارے اور صحافیوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان کی جو متحدہ اپوزیشن ہے اس نے آفر کیا تھا پرویز الہی صاحب کو، اور اس کے لیے میاں نواز شریف پہلے رضامند نہیں تھے لیکن پھر وہ رضامند ہوئے. اور یہ البتہ ایک بات جو ہے کل پرسوں ایک چھوٹی کنفیوژن ضرور ہوئی کہ جب یہ رات کو پاکستان مسلم لیگ نواز کا وقت ملنے کے لیے گیا تو اس کے بعد یہ خبر ضرور آئی کہ پاکستان مسلم لیگ کی قائد اعظم کی جانب سے کہ کوئی آفر ایسی جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ ہمیں جو ہے وہ وزارت اعلیٰ آفر نہیں کی گئی. لیکن اس کی تصدیق بہرحال جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی، لیکن یہ خبریں ضرور جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو تھی اس معاملے کے اوپر ہوئی تھی. اپوزیشن بہرحال یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے کچھ دن پہلے اپنی جو اجلاس سے میٹنگز تھیں اس کے اندر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہم وزارت اعلیٰ کی آپ کو پیشکش کریں گے، اور اسی کے بعد عدم اعتماد کی جو اس یقین دہانی کے بعد ہی عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی تھی اور اعتماد میں لینے کے بعد کی گئی تھی، تاکہ جو خبریں آ رہی تھی کہ وزیر اعظم پنجاب اسمبلی کو برخاست کرنا چاہتے ہیں، عثمان بزدار صاحب برخاست کرنا چاہتے ہیں، تو ان خبروں کو روکنے کے لیے اور اپنا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نامنیٹ کرنے کے لیے یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا. تاہم ظاہر ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اگر اسمبلی برخاست ہو جاتی تو پنجاب اسمبلی تو یہ اپوزیشن کا تو بہت طویل عرصے سے یہ مطالبہ تھا. اسی لیے اپوزیشن یہ چاہ رہی تھی کہ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے یا جو بات ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر عدم اعتماد جو ہے وہ موو کر دی جائے تاکہ اسمبلی جو ہے وہ برخاست نہ ہو. بالکل. شوکت پراچا، وزیر اعلیٰ تو ویسے بھی پرویز الہی بن جاتے لیکن دوبارہ پی ٹی آئی کے پاس گئے، یہ پاپولر فیصلہ لگ رہا ہے آپ کو؟ پتہ نہیں پاپولر فیصلہ پرویز الہی کو لگ رہا ہوگا، لیکن کل سے جو چودھری صاحبان نے اپوزیشن سے کمٹمنٹ کر کے کلا بازی کھائی ہے، تو میں دوسری سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی تو اپنی سیاسی جماعت میں پھوٹ پڑ گئی ہے. میں چودھری خاندان کی بات نہیں کر رہا، میں جناب چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں.
अगर आप ही के पार्टी का एक सेक्रेटरी जनरल और एक मिनिस्टर आप ही के फैसले से इख्तलाफ करे और वो रिजाइन कर दे मिनिस्टेरियल स्लॉट से, तो फिर ये पॉपुलर फैसला कहाँ का हुआ? वर्कर्स को तो छोड़ दें ना। मैं तो उनके अपने एक MNA की और सेक्रेटरी जनरल की बात कर रहा हूँ। जो भरम आगा कामिल अली आगा साहब के बयानात, तारिक बशीर चीमा के बयानात से जो भरम काफ लीग का चौधरी साहबान का एक भरम वाले सियासतदान की हैसियत से सामने आया था, शर्मवाजा भरम रखने वाली पार्टी की हैसियत से नजर आया था, चौधरी परवेज इलाही ने वो जाय कर दिया कल हमारी नजर में। इसलिए कि अगर सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री ही लेनी थी तो वो तो राना सनाउल्लाह आज भी कह रहे थे कि जी दुआ खैर हो गई थी वजारत आला के लिए। आप इमरान खान के इत्तेहादी थे, आप इमरान खान का पहले ही साथ न छोड़ते। आप तो असूल पसंदी की सियासत करने के दावेदार हैं। पहले इमरान खान को धमकियां दी कि हम सियासत आपका साथ छोड़ देंगे, आप बुजदार को रिजाइन करवाया और अब आप चीफ मिनिस्ट्री के लिए जा रहे हैं। अभी भी क्या पता नंबर की गेम कैसे बनती है। दूसरा जो नुकसान हुआ है वो खुद जनाब इमरान खान की जात को भी हुआ है। जितना भी हुकूमती तर्जमान मर्जी ट्विस्ट दे दें, लेकिन इमरान खान भी तो ब्लैकमेल हो गए ना। वो कभी बलूचिस्तान में लाशों के हवाले से कहा करते थे कि बलूचिस्तान में लाशें रख कर वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये तो क्या इक़्तिदार है। आप तो परसों कमालिया में खड़े होके आपने बुजदार साहब की इतनी तारीफ की कि बुजदार साहब यू आर डूइंग ग्रेट। ये फिर अचानक क्या हुआ? क्या उस वक्त आपको पता नहीं था जब आप बुजदार की तारीफ कर रहे थे, या फिर रात को आपको कोई मसला बन गया जिसमें आपने रातों रात बुजदार का रिजाइन दे दिया? फिर आपकी असूली सियासत, आपकी तब्दीली की सियासत, ये फिर सारा ही ड्रामा था। तो इस तनाज़ुर में अपोजिशन गेन करे ना करे, अपोजिशन को कुछ मिले ना मिले, अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन कामयाब करवा न सके या करवा सके, उससे हट के जो परवेज इलाही और इमरान खान को नुकसान हुआ है, मैं समझता हूं कि उसका कोई मदावा नहीं हो सकता। ये सोचना चाहिए था, इमरान खान को भी सोचना चाहिए था और खास तौर पर चौधरी परवेज इलाही को तो जरूर सोचना चाहिए था कि अगर आपने चीफ मिनिस्ट्री पे दिखना है तो फिर आपको अपोजिशन ज्यादा अच्छा रेट दे रही थी। आप अगर इमरान खान के साथ ही बिस्मिल्लाह, हर सियासी जमात का अपना फैसला है, आपने इमरान खान के साथ रहना था तो फिर डट के खड़े रहते, जैसे मोहम्मद इलाही पहले कह के गए थे कि आप घबराए नहीं। ये तो आपने उनको घबराहट से ज्यादा तड़पड़ाहट का शिकार किया और आपने चुपके से हाथ उठा के उससे चीफ मिनिस्ट्री की बोटी निकाल दी, चाहे वो देख पक्की है या नहीं पक्की। ये हांडी वांडी का जो चक्कर था चौधरी साहब कह रहे थे बार बार, वो तो अब सामने आ गया। बिल्कुल। अच्छा आसमा, जिस तरह से शौकत कह रहे हैं कि सियासी साख खराब हो गई, फिर ये कहा जाता है कि बहुत मशहूर है कि सियासत में कुछ हुर्फ आखिर नहीं होता, तो सियासी साख अहमियत रखती है? मेरा ख्याल है कि अहमियत रखती है, जाहिर है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। और खास करके वो जमातें जो कि इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करती, अगर वो ऐसी पॉलिटिक्स करना शुरू हो गई हैं तो जाहिर है कि इससे बहुत ज्यादा, खास करके जो चौधरी बरादरान है, उनकी जो एक वफादारी और उनकी जो रिवायात हैं वो बहुत ज्यादा उसको अहमियत वो देते हैं। और हम पिछले कितने सालों से उनको कवर कर रहे हैं, उनके यहाँ ये चीजें बहुत मानी रखती हैं कि अगर आपने किसी को जबान दे दी, आपने किसी से बात कर ली, और ये होना जाहिर है कि ये बहुत ज्यादा जो है वो एक अफसोसनाक अमर है। इसी तरह से कहा यही जाता है कि ठीक है, ये रिटन मुआहदे नहीं होते, ये गैर तहरीरी से, ये जुबानी, तो सारा जो एतमाद का सिलसिला है वो कहीं से भी आप लिखा हुआ तो नहीं दे सकते। अगर आप हल्के के अवाम के पास भी जाएंगे तो हर शख्स को जो वोटर है आपका, उसको आप तहरीर को नहीं दे सकते। आप उसके साथ एक जुबानी मंशूर बयान करते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग आपसे एतमाद करते हैं। तो इसका बिल्कुल एक बहुत अहम किरदार होता है, बहुत अहमियत इसकी होती है। और जिस तरह से भी आपने कहा कि हाई मॉरल, पराठे साहब कहते कि हाई मॉरल ग्राउंड जो थी वो पीटीआई ने अपने लिए सेट की थी, और वो सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई को हुआ है कि वो जो कहते थे ब्लैकमेल नहीं होंगे, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो लोगों के पास जा रहे हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं। वो अगर इससे पहले ये ऑफर वो ना करते तो आप ये हम कह सकते थे कि इमरान खान ने अपनी चीजों से सौदाबाजी नहीं की और उन्होंने अपनी पंजाब की हुकूमत उड़वा दी, मगर उसके बावजूद वो जो है उन्होंने किसी से और को नहीं बनने दिया या 6 वोटों को नहीं बनने दिया जो वो पहले से कहते थे कि मैं परवेज इलाही को कैसे बनाऊं क्योंकि वो तो 6 वोट सकते हैं। तो ये एक बहुत ही झटका पीटीआई को भी लगेगा, उनके वोटर्स को भी ये बात समझ में आएगी कि जो कहा जाता रहा है वो असल में हुआ नहीं है सियासत में। इसी तरह से आप देखें कि उन्होंने
आज जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें ये कि हम बाकी लोगों के साथ भी मामला तय कर लेंगे, हम एमकेएम को भी नोटिस दे देंगे। 3.5 साल आपने एमकेएम को नहीं कुछ भी दिया, और एमकेएम के दफातर के बंद होने या उनके लापता अफराद का जो मसला या बाकी दीगर मसाइल थे उसके ऊपर हुकूमत को कान नहीं भरे। और अब जबकि हुकूमत फंस गई और उनको लगा कि उनका इक़्तिदार जो है वज़ीर आज़म का वो खतरे में है, तो वो एमकेएम को कह रहे हैं कि हम आपको गवर्नरशिप भी देते हैं, हम आपको मेयरशिप भी देते हैं, हम आपको फलाह भी देते हैं, हम आपको वज़ारत भी देते हैं, पोर्ट एंड शिपिंग भी देते हैं। तो ये कोई अच्छा, ये किसी और को नुकसान हो या ना हो, लेकिन वो जो हाई मॉरल ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, ये उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उनका वोटर भी ये बात जरूर सोचेगा कि खान साहब ने जो कहा वो किया नहीं है, और वो बार बार ब्लैकमेल हुए, उन लोगों के हाथों ब्लैकमेल हुए जो कि सियासी एतबार से जो है वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो है वो रखते थे और भरम रखते थे। उनके भरम को उन्होंने इस्तेमाल भी किया और उसके बाद फिर उनसे वो ब्लैकमेल भी हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा, नंबर गेम के ऊपर मैं जरूर आपसे एक छोटी सी दरखास्त करना चाहूंगी कि ये बहुत ही एक दिलचस्प गेम हो गया। जैसे 169 तो एलानिया तौर पर इस वक्त अपोजिशन के साथ खड़े हो गए हैं, और 3 वोटों की दूरी है सिर्फ इस वक्त जो कि अपोजिशन को चाहिए है, और वो 3 वोट अगर मुनहरिफ अराकीन में से जो कि 26 भी कहे जा रहे हैं, 24 भी कहे जा रहे हैं, अगर उनमें से अगर आप 3 भी सिर्फ ले लेते हैं तो अपोजिशन अपनी जो नंबर गेम है उसको पूरा कर लेगी, और ये अब बहुत अहमियत का हामिल हो जाएगा। लेकिन इसमें 3 तारीख को संडे बनता है और शेख साहब कह रहे हैं 3 तारीख को ही इलेक्शन होगा, तो 3 तारीख तक अगर कोई और तब्दीली ना आ गई, अगर कोई और टेबल टर्न ना हो गई, तो फिर जाहिर है कि इस वक्त तक तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन जो है वो अच्छे नंबर के साथ खड़ी है अवाम के अंदर। बिल्कुल, नंबर गेम का आपने जिक्र कर दिया, और नंबर गेम का ज्यादातर मामला सुबह पंजाब से ही है। सलीम शेख, जिस तरह से इस फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि सियासी राब्तों में भी तेजी आ गई है, तरीन ग्रुप की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है, नून लीग भी अब उनके करीब होना चाहती है, तो क्या समझते हैं कि नंबर गेम क्या बनता नजर आ रहा है आपको? जी देखें, ये नंबर गेम जो है इसका सारा दारोमदार जो है वो वफाक की अदम एतमाद से इस पर मुनस्सर हो गया है, क्योंकि वफाक की अदम एतमाद जब अगर कामयाब हो जाती है तो फिर पंजाब में जो सारी बाजी है वो अपोजिशन के हाथ में चली जाएगी। इसलिए जो है अभी जितने भी तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और जो दिगर मुनहरिफ अराकीन हैं वो दोनों ग्रुप्स के साथ राब्तों में हैं और उनको वक्त मांग रहे हैं। उनका ये स्ट्रेटजी है कि इनसे वक्त दिया जाए दोनों ग्रुप से, और अभी अपना कोई हतमी फैसला किसी को ना दिया जाए। वो सारे जो है अदम-ए-इत्तेमाद की जो तहरीक है उसकी तरफ देख रहे हैं। अगर वफाक में अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर चौधरी बरादरान जिनको, यानी चौधरी फरेज लाई को अगर पंजाब में नामजद किया वज़ीर-ए-आला पंजाब के तौर पर, तो फिर उनको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अलीम खान ग्रुप की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि 40 अराकीन उनके साथ हैं। गो कि अभी तक उन्होंने 40 अराकीन शो नहीं किए, लेकिन अगर यही सूरत रही तो फिर वो अपने 40 नहीं तो उनसे अगर आधे भी लें तो 20 अराकीन काफी होते हैं। और इसी तरह 3 ग्रुप का ये कहना है कि उनके पास 19 अराकीन मौजूद है, और 19 अराकीन जो है वो फैसला करेंगे जहांगीर तरीन से मिलने के बाद। और अभी आज नून लीग ने भी तरीन ग्रुप से राब्ता किया है, और फरेज लाई का भी जो है तरीन ग्रुप से राब्ता हुआ है। गुज़श्ता रात भी राब्ता हुआ था, लेकिन अभी तक हतमी जो है वो बात किसी को नहीं बताई गई, ना नून लीग को बताई गई है और ना ही तरीन ग्रुप को। और ये एक जो ग्रुप्स की सियासत है वो एक बड़ी अच्छी उनकी हिकमत अमली जा रही है कि अभी किसी को उन्होंने हाँ नहीं की। और इसी तरह नून लीग के कोई 7 अराकीन नाराज है जो कि उस बहुत शुक्रिया। सलीम शेख, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमसे बात कर रहे थे। आसमा शराजी का बहुत शुक्रिया, और शौकत पराचा हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब नंबर गेम क्या बनता है, यकीनी तौर पर सियासी राब्ते तेज हो रहे हैं।